بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور اوریجنل اور میں ہوں اسد۔ اس سے قبل آپ مسیحا کی 83 اقساط سن چکے ہیں، اب قسط 84 ملاحظہ فرمائیں۔ لیکن اس سے قبل آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو تمام تر ویڈیوز ملتی رہا کریں، اور ساتھ ہی آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی محبتوں کا اظہار لازمن کریں۔ آئیے اس داستان کا آغاز کرتے ہیں۔ ان بدبختوں کی باتوں نے میرا دل دہلا دیا۔ بکواس بند کرو ناتھن، بدروحوں کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ چلو دیر ہو رہی ہے، ابھی ہمیں دوبارہ بھی یہاں آنا ہے۔ مزید 3 قیدیوں کو لینے کے لیے سرجن صاحب نے ہدایت کی ہے کہ ڈاکٹر جونز کے آنے سے پہلے 6 عدد قیدیوں کو اوٹی میں پہنچا دو۔ پہلے والے ساتھی نے، جس کا نام کارڈن لیا گیا تھا، اپنے ساتھی سے جھڑک کر کہا، میں اور رومی ساکت تھے مگر ہمارے اندر ہلچل مچ گئی تھی۔ ہمارا اندازہ درست ثابت ہوا تھا، امرناگ یہاں پہنچ چکا تھا۔ اب پتہ نہیں وہ کسی شبے کے بنا پر یہاں آنن فانن پہنچ گیا تھا یا پھر یہاں اس نے اپنا وہی ناپاک منصوبہ نمٹانا تھا۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی دعا مانگنے لگا کہ وہ خبیث اور تعصبی انڈین ڈاکٹر رمیش اگروال بھی اس کے ساتھ شامل ہو، جس نے اصل میں میرے ساتھ حسد اور تعصب میں آ کر دشمنی کی گھنونی ابتدا کی تھی، اور میرے معصوم بھائی عادل کا سرجن امرناگ سے مل کر بڑی سپاکی سے قتل کیا گیا تھا۔ ہماری پھٹی پھٹی آنکھوں کے سامنے اس ٹاپو میں ہونے والے گھنونے کالازار کا ایک اور باب عیاں ہو رہا تھا۔ گویا ہماری یہ دوڑ دھوپ، جسے میں جان بوجھ کر خود کو موت کے منہ میں جانے کے مترادف سمجھے ہوئے تھا، کالی از علت نہیں تھی۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ دونوں ایک بیرک کے سلاخ دار دروازے کے سامنے ٹرالی دھکیلتے ہوئے رک گئے، اور پھر دوسرے نے ٹرالی پر سے ایک کلپ بورڈ اٹھایا، اس پر ایک نظر ڈالی، اس کے بعد دوبارہ اسے رکھا اور اندر بیرک میں جھانکنے لگا۔ اس کے بعد اس نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا۔ اس کا ساتھی حرکت میں اور اپنے لباس سے چابیوں کا ایک گچھا نکال کر سلاخ دار دروازہ کھول دیا۔ اگلے چند منٹوں میں ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اندر سے 3 نڈھال اور بسوس جوان قیدیوں کو نکال کر ٹرالی پر لٹا چکے تھے۔ ساتھ ان کے ہاتھوں پیروں پر بیلٹ بھی باندھ دیے گئے جو ٹرالی کے کناروں سے پہلے ہی جڑے ہوئے تھے۔ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد پہلے والے نے ایک ذرا گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا تھا، گویا ایک بار پھر اس نے تسلی چاہی تھی۔ تہہ خانے کا آخری بار سرسری جائزہ لینے کے بعد پھر وہ دونوں ٹرالی دھکیلتے ہوئے اس پراسرار سرنگ میں داخل ہو گئے۔ میں نے حرکت کرنے کی کوشش چاہی تھی کہ رومی نے مجھے روک دیا۔ اتنی جلد بازی کی ضرورت نہیں صاحب، پہلے انہیں آگے نکل جانے دو۔ مگر میں اس کی ہدایت پر بس 1-2 منٹ ہی رکا رہا، پھر آگے بڑھا اور سرنگ کے نزدیک جا پہنچا۔ رومی بھی میرے پیچھے چلی آئی۔ میں نے جوش بھرے لہجے میں اس سے کہا، اب ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، اندر ضرور ان کا وہ کھنونا مذبح خانہ ہے جہاں یہ درندے۔ سیف، اچانک رومی نے میری بات کاٹی، تم اس قدر جوش میں کیوں آ جاتے ہو؟ کبھی تو بالکل مایوسانہ گفتگو کرنے لگتے ہو اور کبھی تو پہاڑ بن جاتے ہو۔ کیا مطلب؟ میں نے اسے گھورا۔ تم نے سنا نہیں، یہ دونوں مزید 3 قیدیوں کو لے جانے کے لیے یہاں دوبارہ آنے والے ہیں، تو پھر ان کے آنے کا انتظار کریں گے ہم۔ وہ بولی، میرے ذہن میں ایک پلان ہے، اب کی بار یہ دونوں جیسے ہی یہاں آئیں گے ہم ان پر قابو پانے کی کوشش کریں گے۔ یہی کام ہم اندر جا کے بھی تو کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا، اندر کے بکھیڑے اور ہوں گے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ادھر ہی سے معاملہ سیدھا کرتے ہوئے اندر جائیں۔ شاید میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں۔ میں نے توفیمی انداز میں اپنے سر کو جھنبش دی۔ شکر ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے اسے گھورا۔ میرا مطلب تھا کہ تم سمجھ رہے ہو میری پلاننگ۔ یہ عام سی اور روایتی سی پلاننگ میرے ذہن میں بھی آئی تھی، اس پر بھی شکر ہے کہ آئی تو وہ مجھے بدستور زج کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ تم پھر نہ وقت الجھ رہی ہو؟ ہرگز نہیں۔ چلو اب واپس اپنی جگہ سدھارتے ہیں، اس نے کہا۔ ہم اپنی پہلے والی جگہ پر آ کر دبک گئے۔ یہ سنہری موقع تھا، جو باتیں اب تک اندھیرے میں تھیں وہ واضح ہونے لگی تھی۔ اندر ان خونی سوداگروں نے اپنے مکروہ مقاصد کے لیے کوئی آپریشن تھیٹر بنا رکھا تھا۔ کوئی ڈاکٹر جونز آنے والا تھا، غالباً جہنم سے، اسے جہنمی کہوں گا۔ اب یہ سرجن صاحب کون ہو سکتے تھے؟ میرا خیال امرناگ ہی کی طرف جاتا تھا۔ تھوڑی دیر گزری، گارڈن اور ناتھن دونوں وہی ٹرالی دھکیلتے ہوئے سرنگ سے نمودار ہوئے اور اپنے کام میں لگ گئے۔ رومی اور میں نے نشستیں باندھے رکھی تھی۔ ایک موقع تھا کر ہم ان کے سر پر پہنچ گئے۔ رومی نے رائفل کا آہنی کندہ گارڈن کی کن پٹی پر رسید کر دیا اور میں نے اپنے پستول کا بھاری دستہ ناتھن کے سر کے پچھلے حصے پر
दोनों बारी बारी तेवरा कर गिरे, मगर मेरा वार शायद हल्का पड़ा था। कमबख्त नाथन ने ढहते ही संभाला लेने की कोशिश चाही थी। मैं इस वक्त इतनी सी कामयाबी की नशे तले गर्दन अकड़ा के रूमी को फखरिया नजरों से देख रहा था कि रूमी ने जल्दी से मुझे हाथ के इशारे से खबरदार किया। अपने मजरूब शिकार को हरकत करते देखते ही मैं गड़बड़ा गया और झुककर उसकी पेशानी पर पिस्तौल के दस्ते का दूसरा वार करने लगा था कि यही मुझसे गलती होगी। नाथन सख्त जान साबित हुआ था, या मेरे वार के हल्केपन से कि उसने लेटे लेटे अपनी टांग की एक भरपूर जरब मेरे पेट पर नाव के जरा निचले हिस्से में रसीद कर डाली। मेरे मुंह से मारे अजियत के चीख खारिज हो गई और मैं कई कदम पीछे लड़खड़ा कर गिरा। शुक्र का मकाम था कि रूमी अलर्ट थी। इसने मेरे हाथ में पकड़ी हुई राइफल को लठ की तरह घुमाकर नाथन के सर पर दे मारा। इस बार वो कमबख्त आवाज निकाले बगैर ढेर हो गया। रूमी मुझे संभालने को लपकी। तुम ठीक तो हो ना सैफ? उसने मुझे सहारा दिया। बस गुजारा है, मैंने दोनों हाथ अपने मजदूब और नाजुक हिस्से पर रखते हुए करा कर कहा। मेरी हालत देखते हुए रूमी ने कहा, अब जल्दी से शुरू हो जाओ। क्या करना है? इन दोनों के लिबास उतार कर पहनना होगे। लिबास की जरूरत नहीं है, इन्होंने जो ओवरऑल पहन रखे हैं वही उतार कर अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं। नंगा करने की सूरत में तुम्हारी मुश्किल हो जाएगी। वो मेरी बात की मानी खेजी समझ कर सुर्ख हो गई थी। फिर हम वही करने लगे। जरा ही देर में हमने इन दोनों के अपर उतार कर पहन लिए और इनके मास्क भी अपने चेहरों पर डाल दिए। हमारे और इनके कदुकामत में मामूली सा ही फर्क था। हमने इनकी तलाशी भी ली थी। बैरकों की चाबियां सबसे पहले हमने अपने कब्जे में करने के बाद इनकी टार्च संभाली। अब क्या 3 कैदी ला दें इस पर? मैंने रूमी से पूछा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, हम ऐसी ही ट्रालियों पर कपड़ा डाल कर ले जाते हैं। गलत, मैंने इख्तलाफ किया। इस तरह अंदर जाते ही हमारा भाड़ा फूट जाएगा और हमें कुछ करने की भी मोहलत या मौका नहीं मिलेगा। तो फिर? उसने सवाल की निगाहों से मेरी जानिब देखा। इन्हीं कैदियों में से 3 को अपने साथ मिला लेते हैं, वो यकीनन हमारा साथ देंगे जब इन्हें यह मालूम होगा कि हम इनके निजात दहिंदा है। लेकिन ये सब तो बेचारे अपनी ही सुध बुध खोए बैठे हैं, हमारा क्या साथ देंगे? कहीं उल्टा खेल ही ना बिगाड़ दें। रूमी किसी खदशे तले बोली। हमें यही करना पड़ेगा। मैंने बैरकों के अंदर बेसुध पड़े कैदियों पर एक नजर डालकर कहा, मुझे इनमें कुछ कैदी होश व हवास में नजर आ रही हैं, और वो देखो। मैंने करीब की एक सामने वाली बैरक के अंदर इशारा किया। वो कोने वाले 2 कैदी हमारी तरफ देख रहे हैं। रूमी ने इस तरफ देखा और अजराहे तासुब बोली, बेचारे कैसी मासूमाना नजरों से हमारी जानिब देख रहे हैं। इन्हें क्या पता कि इन्हें यहाँ किस घनौने और सफाकाना मकसद के लिए रखा गया है। मोहतरमा, मैंने इन पर तुम्हें तरस खाने को नहीं कहा, बल्कि मदद करने को कहा है। वो तो हम कर ही रहे हैं, वो बोली। एक तरकीब आई है जहन में। दूसरे लम्हे वो चुटकी बजा के एक दम बोली और नंगे फर्श पर पड़े दोनों हरकारों के बेहोश जिस्मों की तरफ देखने लगी। इन दोनों को क्यों ना कुर्बानी का बकरा बना दे? तीसरा कहां से आएगा? मैंने कहा। एक कैदी को साथ मिला लेते हैं और जरा जल्दी काम निपटाना चाहिए, कहीं वो सब इधर ही ना आ जाएं। रूमी ने फिर खदशा जाहिर किया। मैं उन्हीं दोनों कैदियों की जानिब बढ़ा। तुम दोनों अपने होश व हवास में हो ना? सलाखदार दरवाजे के करीब पहुंचकर मैंने उनसे कहा। वो मुझे घूरने लगे। फिर एक ने कहा, हमें यहां से निकालो, क्यों कैद किया है हमें यहां? तहम्मुल से मेरी बात सुनो। इस बार रूमी ने कहा, तुम सब एक बहुत खतरनाक गिरोह की कैद में हो और हम अपनी जान पर खेलकर तुम सबको इनकी कैद से आजादी दिलाने के लिए आए हैं। क्या वाकई तुम दोनों सच कह रहे हो? दूसरे कैदी ने खुश होकर कहा। तो मैंने उसकी मजीद तसल्ली के लिए इन दोनों हरकारों के बेहोश जिस्मों की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हें इतना बड़ा सबूत नजर नहीं आ रहा? हमने इन्हें ढा दिया है। ये तुम लोगों को बारी बारी ले जाकर ज़िबा करने का इरादा रखे हुए थे। ये खूनी सुदागरों का गिरोह है जो इंसानी अज़ा का गैर कानूनी और घनौना धंधा करते हैं। अब हमें तुम में से किसी एक की मदद दरकार है। मैंने इन्हें जल्दी जल्दी मजीद कुछ तफसील समझा दी। शुक्र का मकाम था कि दोनों समझदार थे और मेरी बात समझ गए। इनमें दूसरा राजी हो गया, जबकि पहले वाले के जिम्मा हमने ये काम लगा दिया कि वो हमारे जाते ही बाकी कैदियों की बैरकें खोलते और इन्हें सब अच्छी तरह समझाते। जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, वरना सब मारे जाओगे। नहीं, इस तरह हुल्लड़ मच जाएगा। हमारे साथ जाने पर राजी होने वाले ने हमें मना किया। इसकी बात दुरुस्त थी। यह काम इसी तरह राजदारी से होना चाहिए था। अलबत्ता ये बैरकों के अंदर ही रहते हुए बाकी कैदियों को समझा देगा। थोड़ी देर बाद हम 2 हरकारों और एक कैदी को ट्राली पर डाले सुरंग की जाने पड़ रहे थे। वक्त और तकदीर का साथ भी नसीब की कुंजी ही कहलाती है। जो हम समझ रहे थे कि वह हमारे पास आ चुकी थी। एक मुसलमान की हैसियत से मेरा ईमान इस बात पर पुख्ता था कि हक, सच और नेक मकासद की जंग में अल्लाह का साथ भी जरूर शामिल हाल रहता है। बस जरूरत हौसला, सब्र और इस्तकामत व हिम्मत की होती है। हम अल्लाह का नाम लेकर सुरंग में दाखिल हो चुके थे।
हमारे नए पार्टनर कैदी का नाम सलमान था। वो मकामी था और इसका साथी मोइन भी अमारती था। हमें एहतियात के पेश नज़र बैरकों की चाबी उसे दे आए थे और ज़िमन में इसे कुछ हदायत भी दे दी गई थी। वो जल्दबाजी से काम न ले और बाकी कैदियों को कायल करे। मैं और रूमी आगे पीछे से ट्राली धकेलते हुए सुरंग में आगे बढ़ रहे थे। मैं आगे था, टार्च मेरे हाथ में थी, पिस्तौल मैंने शर्ट के नीचे पेंट के बेल्ट में उड़स लिया था। रूमी ने अपनी राइफल ट्राली ही में कहीं घुसा कर छुपा ली थी। एक खतरनाक खेल और मुतवक्का खूनरेज मार्के का तस्वुर दिए हम पामर्दी के साथ पेशकदमी जारी रखे हुए थे। सुरंग ज्यादा तवील साबित नहीं हुई और एक मोड़ काटते ही हमें एक बड़ा सा दरवाजा नजर आ गया जिसकी पेशानी पर सुर्ख बल्ब रोशन था। हम रुके और अभी सोच रहे थे कि क्या करें कि अचानक हल्के खटके की आवाज उभरी और दरवाजे की पेशानी पर जलता बल्ब सब्ज हो गया। साथ ही दरवाजा भी ऊपर को उठ गया, बिल्कुल इसी तरह जैसे किसी चिड़ियाघर में शेर के पिंजरे का दरवाजा ऊपर की जानिब उठा दिया जाता है। सामने हाल सा कमरा दिखाई दिया और एक भारी भरकम आदमी हमारा ही मुंतजिर अंदाज में खड़ा नजर आया। हमें देखते ही बोला, इतनी देर लगा दी? डॉक्टर जॉन्स और अमरनाक पहुंच चुके हैं, जल्दी अंदर आओ। हम धड़कते दिल के साथ अंदर दाखिल हो गए। नहाय चाबक दस्ती के साथ मैंने अंदर दाखिल होते ही गर्दिशी नजरों से इतराफ का जायजा लिया था। अंदर अजीब सी बू फैली हुई थी। हल कमरे में 2 और अफराद भी मौजूद थे मगर वो कदरे परे खड़े अपने किसी काम में मशगूल थे। मंजर किसी मजबा खाने ही का मालूम होता था। 5 जा बजा बेतरतीब से स्ट्रेचर फैले हुए थे। इसी तरह की दीगर मुतलका अला बला अशिया भी दिखाई दे रही थी। एक और दरवाजा भी दाएं जानिब नजर आ रहा था, वो बंद था। ले आओ इन्हें ऑपरेशन थिएटर में, उस आदमी ने ताकवाना अंदाज में हमसे कहा। और अभी मैं सोच रहा था कि क्या किया जाए। रूमी बिजली की सी तेजी से उस वक्त हरकत में आई जब वो आदमी हमें हुक्म देने के बाद दरवाजे की जानिब बढ़ा था। रूमी ने राइफल ट्राली से खींच ली थी और लठ की तरह घुमाकर उसके सर पर दे मारी। वो शख्स तेवरा कर गिरा। बाकी 2 बिदके मैं इनकी जानिब लपका। वो इधर उधर दौड़े। एक को रूमी ने छाप लिया और दूसरे को मैंने जा दबोचा। वो हमले के आम से आदमी थे, जल्द ही काबू में आ गए। इन्हें हैंड्स अप करवा दिया गया। मुझे वहीं 1 साल खोरदा से मेज पर पट्टियां और गाज के टुकड़े नजर आए। मैंने इनकी मदद से इन दोनों के हाथ पांव अच्छी तरह मजबूती के साथ बांध दिए और इन्हें कोने में डाल दिया। हम ट्राली लिए दरवाजे की चानी पड़े और इसे धकेलते हुए अंदर दाखिल हो गए। अंदर एक और माहौल एक शैतानी शाखसाने की सूरत में हमारा मुंतजिर था जो खिलाफ तवक्का बहरहाल नहीं था। नेवी ब्लू कलर और हल्के ग्रीन सर्जिकल गाउन में 4 अफराद मौजूद थे। इनके चेहरों पर मास्क थे। वो सब कमरे के वस्त में नस्ब एक बड़ी सी ऑपरेशन टेबल के करीब खड़े थे। इनमें एक को तो अपनी जिसामत के एतबार से मैं पहचान गया था। वो सर्जन अमरनाक था, जबकि दूसरा गैर मुल्की सफेद फार्म था जो यकीनन डॉक्टर जॉन्स ही हो सकता था। बाकी 2 असिस्ट करने वाले थे। ऑपरेशन टेबल पर कोई नहीं था। हमारे अंदर दाखिल होते ही वो चारों बैक वक्त हमारी जानिब मुतवज्जा हुए। पूरी तौर से तो हम पर किसी शक शुबे का एहतमाल नहीं हो सकता था। यूं मुझे और रूमी को इस एक जरा सी मोहलत से ही फायदा उठाना था। ये सब इंसानियत के दुश्मन थे, किसी तौर पर रहम के लायक नहीं थे। बड़ी देर कर दी तुमने, अमरनाक ने हमें डपटा। ट्राली पर लेटे कैदी सुलेमान को हमने कुछ मखसूस हदायत पहले ही दे रखी थी, लिहाजा हमने मरदूद अमरनाक की बात का जवाब दिए बगैर ट्राली इस तेजी के साथ धकेलते हुए अंदर लाए और रुके नहीं, बल्कि वो इनसे बड़े जोर से टकरा दी। वो कुछ समझे ही नहीं। अरे अरे करते रह गए। कैदी सुलेमान उछलकर ट्राली से कूद पड़ा। मेरे तन बदन में आग लगी हुई थी। मैंने पिस्तौल निकाल ली और अमरनाक की जानिब करते हुए ट्रैगर पर उंगली रख दी। न जाने मुझ में इतना जोश, इतना इश्तियाल कैसे आ गया था। शायद उसकी वजह यही थी कि अमरनाक जैसे रजील इंसान को देखते ही मेरी आंखों में सुर्ख आंधी उतर आई थी और उसमें मेरे मासूम भाई आदिल का चेहरा रक्सा होने लगा था। मैंने ट्रैगर दबा दिया। गोली चली, धमाका हुआ, मगर इससे पहले ही अमरनाक ने बड़ी फुर्ती के साथ एक चाल चली और अपने साथ लुढ़के हुए डॉक्टर जॉन्स को धक्का दे दिया। अमरनाक के लिए चलाई हुई गोली सीधी डॉक्टर जॉन्स के सीने में पवस्त होगी। वो करीहा अंगेज चीख के साथ गिरा और ठंडा पड़ गया। अमरनाक ने एक अंदरूनी दरवाजे की जानिब दौड़ लगा दी। मैंने पिस्तौल का रुख उसकी तरफ कर दिया। रूमी भी अपनी राइफल निकाल चुकी थी। ऐसे में इनके दोनों मददगार पैरामेडिक अफराद ने अपने करीब रखी एक बड़ी सी सर्जिकल ट्राली बड़े जोर से हमारी जानिब धकेली थी। वो हमसे टकराई। हमने बचने की कोशिश चाही। इसी दौरान रूमी की गन ने फायर उगला। अंदरूनी दरवाजे की जानिब भागते हुए अमरनाक के हल्क से चीख खारिज हुई, मगर वो बदबख्त बड़ा सख्त जान साबित हुआ। गोली उसकी कमर की बजाय पुश्त पर लगी।
तब तक वो दरवाज़ा धकेलता लड़खड़ाता हुआ निकल गया। मैं इसके ताक़ुब में जाने के लिए रास्ता साफ करने की गर्ज से संभला और दौड़ा। दोनों असिस्टेंट भी इस समत दौड़े थे कि रूमी की गन से 2 फायर हुए। इन दोनों की बैक वक्त करीहा चीखें उभरी, वो तिबरा कर गिर पड़े। मैं दीवाना वार दरवाजे की जानिब लपक चुका था और उसे धक्का देते हुए निकला और मेरी तवक्का के ऐन मुताबिक वो गोशा भी ओटी का हिस्सा ही था, मगर अमरनाग वहां मौजूद नहीं था। अलबत्ता दाएं जानिब एक स्विंग डोर मुतहर्रिक नजर आया, यूं जैसे अभी अभी कोई वहां से निकला हो। मैं उसी से मत दौड़ा। एक खालसा कमरा आ गया जो खाली था। यह तमाम हिस्सा मुझे साउंड प्रूफ महसूस हुआ था, क्योंकि अभी तक गोलियों की आवाजों से किसी मुतवक्का अफरा तफरी का समा पैदा नहीं हुआ था। मैं हाथ में पिस्तौल था, मैं वहीं रुक गया और बेकरारी से गर्दन इधर उधर घुमाए देखने लगा। वहां 2-3 दरवाजे नजर आ रहे थे। अब यह नहीं मालूम था कि मेरे शिकार ने कौन से दरवाजे का रुख किया था। इसी दौरान रूमी और सुलेमान हाँफते हुए वहां आ गए। खुद पर काबू रखो सैफ, रूमी ने हाँफती हुई आवाज में मुझसे कहा। जो मुझे जहर लगा, अमरनाग पर सीधी गोली क्यों चलाई तुमने? अब नजर आया तो टेढ़ी गोली चलाऊंगा, मैंने चिल्लाने की बजाय भन्ना कर कहा। इसे जिंदा गिरफ्त में लेना है। रूमी मेरे चिढ़ने का बुरा मनाए बगैर बोली। हमें उसकी लाश से कोई सरोकार नहीं, लेकिन मुझे है, मगर इस तरह उसके दूसरे साथी गिरफ्त में नहीं आ सकेंगे। भाड़ में जाएं उसके दूसरे साथी। होश में आओ सैफ प्लीज, जोश इंतकाम में तुम। खामोश रहो, मैंने उसकी बात काट दी। ये 3 कमरे और हम भी 3 हैं, आगे बढ़ो। वो दोनों मेरा इशारा समझ गए और हम लपके। तीनों कमरे हमें खाली मिले। हाथ आए दुश्मन को भागता देखकर मेरे वजूद का रुआ रुआ जोश से थिरकने लगा। मेरी हालत अजीब हो गई थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि एक बार फिर मुझे ये मरदूद दिखाई दे जाए और मैं अपना पूरा पिस्तौल इस पर खाली कर डालूं। हाँ, यही तो बदबख्त था जिसने सुवर नस्ल के डॉक्टर रमेश के साथ मिलकर मेरे भाई आदिल को जिंदा हालत में इसके आज़ाद से महरूम कर डाला था। यही वजह थी कि मुझे रूमी का टोकना भी बुरा लग रहा था। वो जरूर कैद खाने के रास्ते ऊपर दौड़ा होगा, रूमी बोली। हम इसी तरह ओटी के रास्ते वहां पहुंचे और सूंघ से कैद खाने में आ गए। वहां क्या देखते हैं कि दूसरे कैदी मोइन ने बैरकें खोलकर कैदियों को रिहा कर दिया था। वो सब जीनों के रास्ते ऊपर को दौड़े जा रहे थे। एक रेवड़ था जो आज़ादी की तलाश में ऊपर को भागे जा रहा था। इन्हें रोकना फजूल था। हम भी इनके साथ शामिल हो के ऊपर को दौड़े। ऊपर आकर मेरा इरादा वही रास्ता अपनाने का था जहां से हम आए थे, यानी साहिली चट्टानों वाले हिस्से की तरफ, लेकिन रोमी ने मना कर दिया। हम उसी तरफ बढ़ते चले गए जहां तीगर और छोटी बड़ी इमारतें मौजूद थीं। कैदियों को जब अपने साथी मोइन की जुबानी इस सफाकाना हकीकत का इल्म हुआ था कि इन्हें यहाँ किस घनौने मकसद के लिए कैद में रखा गया था, तो वो मजीद इश्तियाल में आ गए थे और वो जान गए थे कि ये इनकी बका की जंग है और यूं वो लड़ने मरने पर उतर आए थे। गर्ज ये कि जो भी शय हथियार के तौर पर इनके हाथ लगी वो उन्होंने उठा ली और बाकी मांदा पहरेदारों पर चढ़ दौड़े। 2-3 को रूमी और मैंने भी निशाना बनाया और इनके असलहे पर काबू जमा लिया, क्योंकि हमारे पहले वाले असलहे का एमुनेशन खत्म होने को था। क्योंकि रूमी और मैंने सुलेमान और मोइन को हदायत दे रखी थी कि इन्होंने अपने कैदी साथियों से क्या करवाना है और वो वही कर रहे थे। रात इस वक्त अपने आखिरी पहर में थी। अचानक मेरी नजर उस गाड़ी पर पड़ी। ये वही खुले टाले वाला ट्रक था जिसके अंदर हमने टापू के सरबराह को अपने चंद मुसल्ला साथियों के हमरा साहिल की जानिब जाते देखा था, जो यकीनन हमारी ही तलाश में थे। मुझे तशवीश होने लगी, गोया वो भी यहाँ लौट कर आ चुके थे।